क्या है? सॉरी 11 हो गया, 12 तत्व बोलेंगे. We read everything. Okay, we'll read that. The Mayavadis. We'll read that. The Mayavadis. Hare Krishna. Hare Krishna. पढ़िए माता जी प्लीज. हाँ. The Mayavadis impersonalists say that one may worship any form of the Lord and that it doesn't matter because one reaches the same destination anyway. But it is clearly stated in the Bhagavad-gétä that those who are worshippers of the demigods will ultimately reach only the planets of those demigods, while those who are devotees of the Lord himself will be promoted to the Lord's abode, the kingdom of God. So actually, these persons who are worshippers of the demigods have been condemned in the Gita. It is described that due to their lusty desires, they have lost their intelligence and have therefore taken to worshipping the different demigods. So in the Vishnu Rahasya, these demigods worshippers are forcefully condemned by the statement that it is better to live with the most dangerous animals than to associate with these persons. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. It's mentioned here that we should not associate with Mayavadis and worshippers of demigods because we will get similar desires and we may get influenced by them. Hare Krishna. Second. अभी आगे का पढ़ेंगे. sisyādy-anubandhitvādi-trayam yathā saptame 7वें स्कंद में कहा गया है. न शिष्यम अनुबंधिना न शिष्यन अनुबंधिता ग्रंथान नाivābhyased bahūn न vyākhyām upaynjīta nārambhān ārabhet kvacit. ओके, पढ़ेगा पहला पैराग्राफ इसका. नॉट एक्सेप्टिंग अनफिट डिसाइपल्स. तो ये तत्व है 12 नंबर का. क्या कि अनफिट शिष्य जो शिष्य होने के पात्र नहीं है, ऐसे शिष्यों को हमें नहीं लेना चाहिए. गुरु को ऐसे शिष्यों का स्वीकार नहीं करना चाहिए. ये तत्व है. तो पढ़ेगा क्या लिखा है वहां पर पहला पैराग्राफ. विल रीड. Hare Krishna Prabhu, can I? Please read. Yes. Not accepting unfit disciples, constructing many temples, or reading many books. Another stricture is that a person may have many disciples, but he should not act in such a way that he will be obliged to any of them for some particular action or some favor. And one should also not be very enthusiastic about constructing new temples, nor should one be enthusiastic about reading various types of books, save and except the ones which lead to the advancement of devotional service. Practically, if one very carefully reads Bhagavad-gétä, Çrémad-Bhägavatam, teachings of Lord Caitanya, and this Nectar of Devotion, that will give him sufficient knowledge to understand the science of Krishna consciousness. One need not take the trouble of reading other books. Thank you. तो ये जो प्रिंसिपल है इसमें 3 चीजों को मना किया गया. क्या? पहले कि sisyādy-anubandhitvādi-trayam. Anubandhitvādi, attachment to disciples and fallen items is not good. Accepting too many disciples. Anubandhitvādi is attachment, wrong attachment. तो जो शिष्य पात्र ने ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहिए. अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे शुरुआत में कि इंटेंशंस में भी गुड इंटेंशन, द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस. उसका मतलब क्या है कि इंटेंशन अच्छे हैं परंतु पात्र नहीं है. सबको मेरे को बांटना है, कृष्ण ने सबको दीक्षा दे दिया परंतु वाउ मेंटेन नहीं कर पाएंगे, 16 माला नहीं कर पाएंगे, नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे. तो वही शिष्य गुरु का बहुत बड़ा हेडेक बन जाएंगे. कैसे करेंगे लोगों को, कैसे संभालेंगे, कैसे उनका उद्धार करेंगे. तो अनफिट डिसाइपल्स को लेने से फिर गुरु को उनका कर्म लगेगा.
पाप कार्य करेंगे तो. So that's why it's mentioned here that one should not accept. So we should not accept unfit disciples. This is first principle. Second principle is we should not build big temples. Big temples, if you build, then, and if you're not fit, qualified preacher, then you may just take a rest in big temple. But the purpose of temple is to preach Krishna consciousness. Prabhupada is going to explain. We'll read that. The point we discussed today, intention may be good, but we have to see what is our capacity. मैं कितना कर सकता हूँ, मैं किसको ग्रहण कर सकता हूँ. How much I can accept responsibility based upon my own qualification. That we have to see. So not doing this thing is also considered as a part of devotional service. कि ना करें, because that will save us in Krishna consciousness. Okay, we'll read a little bit more. एक मिनट. हाँ, तो हमें पढ़ने के लिए गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, भक्ति रसामृत सिंधु काफी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं. भक्ति तत्वज्ञान देने वाले ग्रंथ काफी है, परंतु हम भक्ति तत्वज्ञान देने वाले ग्रंथों से बाहर जाके पढ़ेंगे तो क्या होगा, मन हमारा भटक सकता है. इसलिए प्रिंसिपल है. ओके, तो आगे का कोई पैराग्राफ पढ़ेगा? प्रभु जी वो जो टेम्पल वाला था, ज्यादा टेम्पल नहीं बनाने चाहिए. आएगा मतलब जो और डिस्कशन आएगा तो हम करेंगे उसमें. कोई पढ़ेगा आगे इन 7th canto of Śrīmad-Bhāgavatam? शेयर नहीं हो रहा. शेयर नहीं हो रहा है. फुल रीड. शेयरिंग नहीं हुआ प्रभु जी. अभी भी नहीं हुआ? नो प्रभु. Okay, he's doing one more time. Now are you able to see? Yes. Okay, in 7th canto of Śrīmad-Bhāgavatam, 13th chapter. Full read. मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए. Not accepting unfit disciples, यही से ना प्रभु जी, constructing many temples. नहीं, ये तो पढ़ चुके हैं. 7th, in the 7th canto of Śrīmad-Bhāgavatam, 13th chapter, verse 8, Narad Muni, while discussing with Maharaj Yudhishthira the various functions of the different orders in the society, especially mentions rules for sannyasis, those persons who have renounced the material world. One who has accepted the sannyas order of life is forbidden to accept as a disciple anyone who is not fit. A sannyasi should first of all examine whether a prospective student is sincerely seeking Krishna consciousness. If he is not, he should not be accepted. However, Lord Caitanya's causeless mercy is such that he advised all bona fide spiritual masters to speak about Krishna consciousness everywhere. Therefore, in the line of Lord Caitanya, even the sannyasis can speak about Krishna consciousness everywhere, and if someone is seriously inclined to become a disciple, the sannyasi always accept him. The one point is that without increasing the number of disciples, there is no propagation of cult of Krishna consciousness. Therefore, sometimes, even at a risk, a sannyasi in the line of Chaitanya Mahaprabhu may accept even a person who is not thoroughly fit to become a disciple. Later on, by the mercy of such a bona fide spiritual master, the disciple is gradually elevated. However, if one increases the number of disciples simply for some prestige or false honor, he will surely fall down in the matter of executing Krishna consciousness. Similarly, a bona fide spiritual master has no business reading many books simply to show proficiency
or to get popularity by lecturing in a different places. One should avoid all these things. It is also stated that a sannyasi should not be enthusiastic about constructing temples. We can see in the lives of various acharyas in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu that they are not very enthusiastic about constructing temples. However, if somebody comes forward to offer some service, the same reluctant acharyas will encourage the building of costly temples by such servitors. For example, Rupa Goswami was offered a favor by Maharaj Man Singh, the commander-in-chief of Emperor Akbar, and Rupa Goswami instructed him to construct a large temple for Govindji, which cost vast amounts of money. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक मिनट, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो सन्यासी है उसको कैसे शिष्य ने स्वीकार करना चाहिए जो अपात्र है। परंतु सन्यासी को ये भी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है हमारा आज्ञा गुरु याथा रे देश, हमारे आज्ञा से गुरु बन के इस देश का उद्धार करो। उन्होंने कहा कि जार देख तार को कृष्ण को देश, जहां भी जिसे भी मिलो सबको कृष्ण को उपदेश दो। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए यू नीड असिस्टेंस, यू नीड डिसाइपल्स, प्रॉपर राइटिंग हियर। Unless your network or your devotees helping you or disciples assisting in the service, how spiritual master will spread Krishna consciousness all over the world. So spiritual master, to follow the order of Chaitanya Mahaprabhu, accept disciples, but the point is he should not accept unfit disciples. That will put a disciple, or he should not accept disciples to show people कि I got so many people, मेरे देखो कितने सारे followers, धनम जनम सुंदरिम कविता विदिश काम, जन्म हम लोग अपना फॉलोइंग दिखाने के लिए हम भक्ति नहीं कर रहे। So that to engage them in Krishna consciousness, to elevate them in Krishna consciousness, to deliver them to spiritual world, one may accept disciples. Not to false ego, pamper one's false ego. खुद का मिथ्या अहंकार बढ़ाने के लिए कोई इस प्रकार के शिष्यों का स्वीकार ना करे। शिष्यों का स्वीकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी करें। तो हमें भी देखना चाहिए और हमें ये भी देखना चाहिए कि कितना प्रैक्टिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं। So spiritual master will decide that how many, it's very personal decision. Some spiritual master may initiate 100,000 of disciples. Some spiritual master will be very choosy, only few disciples. That's what they feel comfortable. So there's a personal choice of spiritual master, wherever, whatever they feel comfortable. There are some spiritual masters, they accept only one disciple. Like Loknath Goswami, he accepted only Narottam Das Thakur. Srila Gaur Keshwar Das Babaji Maharaj, he accepted only Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. A disciple. And Srila Bhakti Siddhanta Thakur accepted so many disciples. Srila Prabhupada accepted 1,000 disciples, 5,000 disciples. In this way, we cannot calculate कि ये गुरु ने इतना disciple को स्वीकार किया तो ये ज़्यादा powerful है, इन्होंने नहीं किया तो कम powerful है. That is a choice. And as per their desire, they will execute that choice. That is between them and Krishna. गुरु और कृष्ण के बीच में. दूसरा principle यहाँ पे temples को costly temples, constructing huge costly temples. तो इसके लिए भी हमें इतना कष्ट करना पड़ रहा है कि लोगों का साधना नहीं हो रहा है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पूरा फंड कलेक्शन से पैसे के बारे में चिंतन हो रहा है। तो फिर हमें समझना चाहिए कि नहीं, हम लोग थोड़ा ज्यादा अत्याचार की तरफ जा रहे हैं। परंतु we construct temples, the purpose is for preaching Krishna consciousness, not हम मंदिर बना के बाग बाजार जैसे मंदिर में जैसे हुआ कि शिष्य ने श्रील भक्ति ठाकुर शिष्य ने अपना रूम पकड़ लिया कि मेरा रूम, झगड़ा होने लग गया कि ये अच्छा रूम मेरे को मिलना चाहिए, राइट। तो भक्ति ठाकुर बोले कि मंदिर को तोड़ दो और मार्बल बेच के जो पैसा आएगा उससे बुक्स छापो और बुक्स को बांटो। So people want to be in a comfortable zone and that's what they build temple for. That's not temple, is not purpose of that. Purpose of temple is जैसे आर्मी बाहर जाती है और रात में बेस कैंप में आती है और रेस्ट करती है, वापस अगले दिन जाके फाइट करती है। तो टेम्पल्स आर लाइक बेस कैंप, वहां पे आके रिचार्ज हो और वापस बाहर जाके कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करें। It's not that we are comfortable cozily in temple कि बाहर लोग पैसा दे रहे हैं, हम लोग उसको श्रील भक्ति ठाकुर कहते हैं कि शालिग्राम शिला से सुपारी तोड़ने जैसा। शालिग्राम शिला लेके सुपारी तोड़ता है तो वो भगवान का इस्तेमाल करके खुद का इंद्रिय भोग करने जैसा कि डीटी दिखा के पैसे कमा कि हमारा डीटी देखो पैसा दो और हम लोग आ रहे उसे भोग खा रहे हैं। हमें प्रचार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी जो भी फंड कलेक्शन के लिए जाते थे, आप आई बिल्ड यू टेंपल में पढ़ोगे तो उनको पूछते थे आपने कृष्ण भावनामृत के बारे में क्या बताया नहीं बताया। You should preach heavily, कहते थे प्रभुपाद जी। सब बताना चाहिए आपने। डोनर लोग पैसे नहीं कि कुछ तो बोल के आप पैसे दो, गुड़ी बातें करके आपने पैसा निकालना है उससे, उसको आप भक्ति नहीं दे रहे हो। आप किसी से पैसा ले रहे हो तो आपका भी
कर्तव्य है जिसके घर में आप जा रहे हो उसके लिए कीर्तन करो, उसके लिए थोड़ा प्रचार करो, उससे कृष्ण के बारे में बताओ। तो इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने जो भी लाइफ मेंबर बनता है उसके लिए निर्देश रखा था कि उसको सारी प्रभुपाद जी की किताब मिलनी चाहिए। अभी भी इस्कॉन में कोई लाइफ मेंबर बनता तो सारा श्रील प्रभुपाद जी की किताब का सेट उसे दिया जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमें फंड रेजिंग, हमें फ्रेंड रेजिंग करना है, जैसे कहते हैं। तो हम लोगों को भक्ति के तरफ लेके आते हैं, लोगों को कृष्ण भावनामृत देते तो अपने आप लोग पैसे भी देंगे। Some people just want to give money, but we should in return give them some prasad, give them kirtan, chant for them, or give them holy name. We should tell some Krishna katha to them. ऐसे नहीं कि हम सिर्फ लोगों से कुछ लेके आ गए, किसी के घर पे भी हम जाते हैं कुछ प्रसाद लेते तो हमें उनके लिए कीर्तन करना चाहिए, उनको कृष्ण का उपदेश देना चाहिए। नहीं तो फिर हमें we are taking karma, right? We are not delivering what we are supposed to. हम लोग एक साइड से हम लोग किसी का फेवर ले रहे हैं। So people are serving us by contributing to Krishna consciousness. Definitely they are serving Krishna, but we should also reciprocate as Krishna reciprocates and share them Krishna consciousness. Otherwise हम लोग materialist हो जाएंगे। If we don't share Krishna consciousness, तो बाहर वाले लोग ने बड़े-बड़े टेंपल बनाए हैं, हमसे भी टेंपल बनेगा, but will not be soul. The soul of the temple is भगवान का अर्चक को कैसे सेवा हो रहा है, डांसिंग चैंटिंग कैसे हो रहा है, ये मंदिर का एक्चुअल पर्पस है। तो इसीलिए बड़े-बड़े बहुत सारे मंदिर बनाए आपने और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो ठीक से, सेवा भी ठीक से होना चाहिए। वैसे नहीं कि अर्चक वगैरह लाके बस रख दिए, उनका क्लीनलीनेस, उनका पंक्चुअलिटी, उनका सेवा का स्टैंडर्ड गिर रहा है, परंतु आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बस डिटीज को बढ़ा रहे हो लोगों को और पैसा लाने के लिए या अपने खुद की इच्छा से। हमें स्टैंडर्ड को मेंटेन भी करते आना चाहिए, जो डिटीज के स्टैंडर्ड, वी कैन नॉट whimsically bring the deities and not follow the accepted standards. Of course, we can gradually raise the standards. There's no harm in it. क्योंकि इस्कॉन में वैसे हुआ कि प्रभुपाद जी ने अपने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ थे, उनको रखा था। पहले सब लोग एक अगरबत्ती घुमा रहे थे, सब एक करता था फिर दूसरे के हाथ में, फिर दूसरे को घुमाता था। तो इस प्रकार से वर्शिप चालू हुआ और मोमबत्ती से आरती करते थे सब भगवान का। पर धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड आगे के स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया सब डिवोटीज को। शीलावती माता जी को ट्रेन किया deity worship में। He instructed to go to every temple. You should preach about, or you should teach about deity worship. Train all devotees in deity worship. So gradually, Prabhupada brought standards. तो initially आप कोई मंदिर चालू करते हो या कोई भक्त, तो initially the standards may be okay as per the time, place, situation and devotee. But gradually standards increased. And definitely ISKCON में तभी आपको कोई deity रखना है तो आपको deity worship ministry का permission लगता है। वो लोग आते हैं, वो देखते हैं आपके पास कितने ब्राह्मण है, आपको उसकी कैपेसिटी है क्या, आप उसको मेंटेन कर पाओगे क्या, तो ये परमिशन देगा। परमिशन नहीं देगा ISKCON। You just can't make temple and say that I made a temple और भगवान की मूर्ति लेके आएगा, नहीं, आपको सेवा भी होना चाहिए। So these are all reasons actually why it is mentioned here that one should not be enthusiastic about constructing huge temples. But we construct temples, huge temples. Prabhupada constructed 108 temples for preaching Krishna consciousness, and we take anxiety for preaching, sharing Krishna consciousness. Prabhupada कहते थे कि हम झाड़ के नीचे भी बैठ सकते हो, प्रचार कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग झाड़ के नीचे आओगे कि आपके लिए टेंपल है, सो दैट बड़े बड़े टेंपल से लोग आकर्षित होते हैं और वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का स्वीकार करने के लिए उनके लिए आसान होता है। इसीलिए हमारे बड़े बड़े टेंपल। ओके, और तीसरा प्रिंसिपल यहाँ पे पढ़ा नहीं हमने, पढ़े क्या? विल रीड लिंब या पैराग्राफ। तो गोस्वामी ने ऐसे किया। एक्चुअली भगवान पे श्रद्धा होना चाहिए। हिज होलीनेस महाविष्णु स्वामी महाराज राजकोट में मंदिर बनाए, उनका इतना श्रद्धा था भागवतम पे, वो कहते हैं हम कुछ नहीं करें, सिर्फ भागवत पढ़ेंगे, बाकी सब मंदिर बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे डिवोटी फॉलो। प्रभुपाद जी ने भेजा भी था फंड कलेक्शन, प्रभुपाद जी ने सेवा किया था, बट ही हैज हिज सच अ फर्म फेथ दैट भागवत पढ़ रहे थे और व्यक्ति आ गया, बोला ये आपको पैसा, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे स्वामी जी, अब मंदिर बनाना चाहते हो, ठीक है, लो पैसा ले, लैंड, एंड द होल टेंपल वाज कंस्ट्रक्टेड एक्चुअली। just reading Śrīmad Bhāgavatam. So this is also there. So that means actually at least हमारा जो गुरु ने काम करना चाहिए, साधना मेंटेन करना चाहिए हमारा। We should have faith की ऐसा नहीं कि हम दिन रात काम करेंगे, साधना नहीं करेंगे तो फिर चीज हो जाएगा। No, when we are taking shelter of Krishna, Krishna can do miraculous things actually. हमारे समझ से परे कृष्ण कार्य कर सकते हैं। कृष्ण कैसे कार्य कर सकते हैं हमें नहीं पता है, बट कोई सोचेगा नहीं मेरा भक्ति है, मैं थोड़ा बाजू में रखता हूँ, बहुत सारी भौतिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो फिर हम किस कैटेगरी में आ जाते हैं? फिर ऑर्डिनरी लोग की कैटेगरी में आ जाते हैं।
हम भी उनके साथ कम्पीट कर रहे थे। और तो कृष्ण का भक्ति कर रहे हो आप, उसके ऊपर ध्यान रख रहे हो, तो फिर कृष्ण आपको स्पेशल ट्रीट करते हैं। देन यू आर आउट ऑफ दैट कैटेगरी। फिर कृष्ण के डायरेक्शन में हो, उनके निगरानी में हो, कृष्ण फिर आपके लिए सबसे भला है वो करेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे मिल गए। कई सारे भक्त कहते कि मैं तो पता ही नहीं, मेरा ऐसा कोई भाग्य नहीं था, भगवान ने दे दिया है बस। तो भगवान का आश्रय लेते तो भगवान हमें जो चाहिए वो प्रदान करेंगे। प्रभुपाद जी को कैसे वो छोटा सा एक स्टोर फ्रंट, बस 1 महीने का भाड़ा था उनके पास में, तब उन्होंने वो स्टोर फ्रंट लिया। उसके बाद में जिस 2-4 साल में कितने सारे सेंटर बन गए उनके। सो कृष्णा विल रेसिप्रोकेट डेफिनेटली। ओके, किसी को कोई प्रश्न है? 10:30 हुआ है, प्रश्न नहीं है तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम रीड करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? ऋतु माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें एक 3rd पैराग्राफ में जैसे आपने बताया कि जैसे और इसमें लिखा भी हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु जी ऐसा कहते थे कि थोड़ा हमें खतरा लेते हुए ऐसे भी शिष्य जो योग्य नहीं है, अयोग्य को शिष्य बना सकते हैं। और क्योंकि वो फिर बोनाफाइड गुरु के निर्देशन में धीरे धीरे जाके वो सही हो जाएंगे, योग्य बन जाएंगे। पर प्रभु जी, कभी अगर ऐसा हो कि वो योग्य ना बने और मतलब अयोग्य ही रहे गुरु के निर्देशन में, और वैसा वो ना करे, मतलब जो हमारे 4 नियामक सिद्धांत हैं उनका पालन करना, और ऐसे ही कोई शिष्य बन जाए, तो फिर उसको कैसे समझे प्रभु? गुरु पर्सनल रिस्क लेते हैं, आइदर ही में अंडरगो सफरिंग फॉर देम। जैसे कई सारे गुरु, उनको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम चैलेंजेस होते हैं क्योंकि डिसिपल्स फॉलो नहीं करते। दूसरा है कि ये भी आध्यात्मिक बल के ऊपर गुरु एक्चुअली सब चला सकते हैं, उनके पाप कर्मों की जो रिएक्शंस आती है, he will not get affected। आपको that person who is doing committing sins, उसका तो पतन हो जाएगा, या उसको उसका पाप का फल भुगतना पड़ेगा, नए पाप जो कर रहे हैं। परंतु गुरु है, उनका आध्यात्मिक शक्ति इतना है, तो अपने आध्यात्मिक शक्ति से गुरु डिसाइड करेंगे कि कितना वो हैंडल करेंगे, कितना लोग कर्म लेंगे। because by their pure chanting actually can destroy all sinful activities। भगवान का आश्रय लेके। तो कभी कभी प्रभुपाद जी ने शुरुआत के दिनों में एकदम नए लोग सबको प्रभुपाद जी ने ग्रहण किया। एक्चुअली एक वो दीक्षा होने के बाद प्रभुपाद जी ने उनको नियम बताए कि ये सारे नियम हैं, ऑल इनिशिएटिव्स दे आर इन्फॉर्म्ड, दे हैव टू फॉलो प्रिंसिपल्स। तो दीक्षा होने के बाद फॉलो प्रिंसिपल और चैंटिंग सेक्शन वाज मेंशन टू देम, बिकॉज़ Prabhupada wanted they should first take it to serious Krishna consciousness by accepting Diksha। तो Prabhupada जी ने किया ये, but yeah, depends on the spiritual master, how much he is personally want to extend himself and use mercy। तो हमें अपना शक्ति देख के लोगों को प्रचार करके हम रिस्पॉन्सिबल है, बट वॉट एवर वी डू वी बिकम रिस्पॉन्सिबल। ऑफ कोर्स कृष्णा, इफ यू आर डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, then कृष्णा so protect, but yeah, we have to see our capacity and we have to take guidance। ठीक है माता जी? यस प्रभु। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो बुक्स का बोला है कि ये बुक सफिशिएंट है, पर हमारे तो कभी हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहते हैं साथ में, तो इसका मतलब कंसंट्रेट करना चाहिए पहले इन बुक्स पर। वैसे प्रभुपाद जी ने ये भी लिखा है कि फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोका, उसके परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो सीरियस स्टूडेंट है, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग यू नीड अदर लिटरेचर रिटन बाय ऑल ऑफ द प्रीवियस आचार्यज। प्रभुपाद राइट्स देयर, पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं। If you want to read that quickly, let's on that। तो ये सफिशिएंट है ना? आप इतना भी पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा डेफिनेटली। बट कोई और पढ़ना चाहता है और रेफरेंस बुक, कुछ लोग रहते हैं जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ के आपको सब्जेक्ट निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ लोग रहते हैं कि जिनको रेफरेंस से पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है और उसमें रिलीज करना है, सब्जेक्ट में उनको अच्छा लग रहा है, they want to enjoy more, relish more, so then they may go for studying lot of reference books। हम देखते हैं ऐसा होता है। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की किताबें काफी है, हमको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट
a particular devotee want to get more understanding, more deep, you want to go learn more, so he may accept, he may read other books. He may purport this. I want to read that. 1 second. किसी ने खोला? Okay. Within past 500 years, many erudite scholars and acharyas like Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti, Vallabhacharya, and many other distinguished scholars, even after the time of Lord Caitanya, made elaborate commentaries on Bhagavatam, on the Bhagavatam. And the serious student would do well to attempt to go through them to better release the transcendental messages. Prabhupada जैसे लिखते हैं, गंभीर भक्त है, वो क्या करेगा? जो बहुत रसिक भूमि भावुक, जो रसिक भक्त है, जो और रस चाहता है, तो वो ये सारी किताब भी पढ़ेगा, क्योंकि उससे और अंडरस्टैंडिंग डेप्थ आए. तो ऐसे नहीं कि प्रभुपाद जी करके ना पढ़े, परंतु दीज बुक्स आर सफिशिएंट. मेन ये प्रिंसिपल ये इसमें ऐसे बुक्स नहीं पढ़ने चाहिए जो भक्ति, शुद्ध भक्ति के तत्वों को जो स्थापित नहीं करते हैं. The books which don't propagate the pure devotional principles, we need not read those books. जैसे वेदा है, हमको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. कई सारे लोग बोलते हैं इस बार में, कहते क्यों आए आप, हमको वेद पढ़ना है. आपके वेद है क्या? त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुन. कृष्ण गीता में कहते कि वेदों में क्या है? 3 गुणों से भरे हुए वेद, तो हम निस्त्रैगुण्य में. तो हम ये सारी किताबें, बाकी किताबें नहीं पढ़ते, परंतु भागवत के ऊपर कोई बोनाफाइड आचार्य का कमेंट्री है, तो one may read that for better relishing the subject matter. There is no harm in that. But we should thoroughly, nicely, we should read Srila Prabhupada's books ideally first, because Srila Prabhupada has given essence of all the Acharyas' commentaries in his commentary. And when we read Acharyas' commentary, we'll also be able to understand Srila Prabhupada's mood. We'll be able to better appreciate Srila Prabhupada. जब हम पढ़ेंगे और प्रभुपाद जी के पढ़ पढ़ेंगे तो और appreciate करते हैं. इसलिए प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स पढ़ने चाहिए, तो हमें एक एंगल भी मिलेगा उसको देखने का. यस मधु जी. हाँ प्रभु जी, वो ये तो समझ आ गया, पर जैसे प्रभुपाद की भी तो बहुत सी बुक्स है ना, जैसे इसमें तो 2-3 बुक्स लिखा है, जैसे गीता, भागवतम, जैसे सफिशिएंट. पर हम तो छोटी छोटी बुक्स भी है, तो बहुत हम लेटर स्टेज पे भागवतम, चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं. पहले तो हमें वो ही पढ़ाई जाती है, छोटी बुक्स. तो वो भी छोटी बुक्स भी भागवतम, चैतन्य चरितमृत, वो क्या है? प्रभुपाद जो लेक्चर दिए भागवतम के ऊपर, उसका कंपाइलेशन है सारा. वैसे उसमें बहुत हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है वो किताबों में, दैट इज रिकमेंडेड ऑर्डर, बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल विद दैट. अभी जब प्रभुपाद जी किताब लिख रहे थे तो सीसी भी बट रहा था, है ना, डायरेक्टली जाके सीसी बेच रहे थे डिवोटी से, भागवतम बेच रहे थे. जैसे वो कैंटो आता तो वो कैंटो सेलिंग के लिए चला था, कॉमन पब्लिक में बांटा, कृष्ण बुक आता सबको बांटा. सो इट्स there in Srila Prabhupada books, there's not very hard and fast rules. Still, Çrémad-Bhägavatam is good to start from beginning, because that's a traditional way. Direct 10 canto भी जब नहीं करना चाहिए, एक कैंटो पढ़ना चाहिए. But Prabhupada जी also, fortunately Prabhupada जी ने ऐसे तात्पर्य लिखे हुए कि जगह जगह पे शरीर आत्मा का ज्ञान, प्रकृति के संदर्भ में ज्ञान, सब कुछ दिया है प्रभुपाद जी ने. हर एक किताब में सब कुछ ज्ञान दिया है. आप इंडिपेंडेंट किताब भी देते हो, वो किताब पढ़ के भी पूर्ण भक्त बन सकता है, कोई भी किताब. क्योंकि प्रभुपाद जी हर एक कैंटो में, हर एक किताब में वो जीवात्मा क्या है, कृष्ण क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है, सारा ज्ञान प्रभुपाद जी दे ही देते हैं. तो इसीलिए हमें कोई हार्म नहीं है वैसे बहुत ज्यादा प्रभुपाद जी के परपोर्ट जब तक हम पढ़ रहे हैं. तो छोटी किताबें good if you can read, because you'll enjoy more, क्योंकि प्रभुपाद जी एक भागवतम का जो सेक्शन है इतने सारे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं. बट you can also decide which books you want to read first. That's fine. ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा कोई hard and fast rule नहीं कि बस इसी इसमें पढ़ना है. अच्छा है, recommended follow, but it's not compulsory. जो His Holiness भक्ति चारू स्वामी महाराज थे, सबसे पहले Nectar of Devotion किताब पढ़ा, और Nectar of Devotion पढ़ के इतने प्रभावित हुए कि सीधा वो प्रभुपाद जी को सब छोड़ के मायापुर में आया, प्रभुपाद जी को ज्वाइन किया कलकत्ता में माया. So we find devotees getting different books and getting inspired by Srila Prabhupada. Okay. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, जैसे अभी आपने कहा ये बुक्स जो हमें है फर्स्ट कैंटो से स्टार्ट करना चाहिए श्रीमद् भागवतम जी को. तो जैसे 10th कैंटो से कृष्णा बुक है, उसको पहले रीड कर सकते हैं कि वो भी नहीं करना चाहिए हमें? कर सकते हैं उसको. प्रभुपाद जी ने स्पेशल कंसेशन दिया. You can read Krishna book.
प्रभुपाद जी भी पढ़ते थे, सबको कहते थे कि सोने से पहले यू कैन रीड कृष्णा बुक रेगुलरली। प्रभुपाद जी रिकमेंड कि कृष्णा बुक में भी प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से फिलोसॉफिकल फाउंडेशन दिया है। यू कैन रीड कृष्णा बुक, ओके। बट पैरेलली पढ़ते रहो, बाकी किताबें पढ़ते रहो, है ना, कृष्णा बुक के साथ। अच्छा, ओके। आई थिंक 10:45 is getting 10:45 now. We'll close and we'll again continue. आज 3 प्रिंसिपल डिस्कस किए हमने। शिष्य गुरु को अनफिट डिसाइपल को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स, one should not construct too many temples. Take lot of endeavors for that. And third was read too many books, specifically books which are not containing the instructions about devotional service. Thank you very much. Shri Prabhupada ki jai. 3 times we chant Hare Krishna mantra, then we close. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhu. Thank you. Hare Krishna, Hare Bol, Dandavat Pranam Prabhu. Hare Krishna, Dandavat. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram.